Good morning, everyone. In the last classes, we did talk about the concept of inverse trigonometry, and we did consider a formula list wherein initially we did talk about the domain and range of inverse trigonometric functions. You are required to understand and learn this table particularly. Then we also considered following formulas for your quick reference. Please look at the screen. Quickly, I'll change the screen. It is just a quick recap that tan inverse 1 by x is actually cot inverse x for x greater than or equal to 0. Cos inverse of minus x, pi minus cos inverse x, and similar expression for secant inverse x minus x and cot inverse minus x. Then sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. Cosecant inverse x plus secant inverse x is pi by 2. But remember, they have their restricted domain. So x sometimes may only belongs to minus 1 comma 1. Then only sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. And then we consider the following two formulas. Very, very important formulas. And then the formulas for 2 tan inverse x. Check them quickly. So 2 tan inverse x is expressed in the terms of sin inverse, in the terms of cos inverse, and in the terms of tan inverse. And then we have learned the following substitutions. And most of the questions in inverse trigonometry, as mentioned earlier, they would be requiring certain substitutions. And I already explained why such substitution will work. That will convert our binomial into a monomial, and that can be simplified then easily. Let me now consider few more formulas, and you will find these formulas are actually not given in your NCERT textbook, but if you apply them, use them in the examination, it is allowed. But if possible, we will try to avoid these formulas. And as far as the conditions mentioned are given, they are little bit typical, no need to worry. If the questions are given wherein we need to apply these formulas, definitely these conditions will be satisfied. So questions are framed in such a way that no condition will be violated. Likewise, we have the formula sine inverse x plus sine inverse y, and that is actually sine inverse of x into root 1 minus y square plus y into root 1 minus x square. At least learn this expression, forget the condition as of now. And similarly, if this is negative in between, यहाँ negative आ जाएगा. Similarly, we have the formulas for cos inverse x plus cos inverse y and cos inverse x minus cos inverse y. Two sin inverse x, sin inverse 2x into root 1 minus x square, and 2 cos inverse x is cos inverse of 2x square minus 1.
and it is not difficult even to prove these formulas, at least the last two. But proving is not required. Learn them. Sin inverse x plus sin inverse y वाले या cos inverse x plus cos inverse y, you can avoid them. The following three formulas I already have discussed. 2 tan inverse x का in terms of sin inverse, cos inverse and tan inverse, and then 3 sin inverse x का formula and 3 cos inverse x का formula. We in fact proved these formulas, and then we have a formula for 3 tan inverse x, and tan inverse x plus tan inverse y. Now check it out for tan inverse x plus tan inverse y. I did consider first and second formula. This I have discussed, and pi plus हो जाता है if instead of xy less than 1 it is xy greater than 1. Generally third formula is not required, so you can avoid that. But yes, of course, when xy is greater than 1, पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी. तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज पूरे डराइव हुए हैं. नो नीड टू वरी, थर्ड फार्मूला अवॉइड कर दीजिए. सेम वे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, थर्ड फार्मूला हम छोड़ सकते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड आने चाहिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now let us come back to the few NCERT problems from miscellaneous and 2.2 as well. Abhi, right now, few questions from 2.2. Please check this out. We'll make a use of a simple hierarchy. Sin inverse half pi by 6 होता है. पुट कर दी वैल्यू, तो यहां साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू रख दिया. फर्स्ट स्टेप ये आ गया 2 इंटू पाई बाय 6, ये दे देगा कॉस पाई बाय 3 विच इज हाफ tan इनवर्स 1, your required answer. So this is a one marker question only. Check out this question. Find the value of this. हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, तो अंदर वाली चीज एक्चुअली पाई बाय 2 थी, और cot पाई बाय 2 होता है 0. योर आंसर. Find the value of the following expression. Tan of half of, फिर अंदर sin इनवर्स 2x और ये सब दिया हुआ है, और साथ में इनकी कुछ कंडीशंस भी मेंशन करी हैं. बट यू नीड नॉट टू वरी, आप डायरेक्ट अगर स्टार्ट करें. फर्स्ट एक्सप्रेशन में इसकी बात करूंगा. वैसे आपको याद होना चाहिए दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स x. बट क्यों होता है, चलो वो हम यहां क्विकली देख लेते हैं. तो व्हाट विल हैपन टू दिस एक्सप्रेशन? और थीटा ऊपर लिख चुके थे tan इनवर्स x. सो आ गया ये फार्मूला जो डायरेक्ट हमने फार्मूला की तरह याद किया है. सो फार्मूला आर नॉट टू बी लर्न फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट. कि 2 tan इनवर्स x होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. रिमेंबर द फॉर्मूलाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो. तो अगर कहीं दिख जाए कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
आप उसको 2 tan इनवर्स लिख पाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। एनीवे, लुक एट द सेकेंड टर्म। अब यहां हम बात कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की, मतलब इसके लिए। सो y को ले लिया tan अल्फा। कंसिडर दिस एक्सप्रेशन। दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, क्लास 11th में करा हुआ है। cos 2 अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो बस इससे ये 2 अल्फा और अल्फा की जगह 2 tan इनवर्स y आ गया। राइट, नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये दो वैल्यूज। गिवन एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया, 2 कॉमन होके कैंसल। Inside the bracket there is a formula and logical cancellation will give you the required answer. Yes, formula for tan inverse x plus tan inverse y ही अप्लाई किया है हमने यहाँ पर। और चेक करिए, वैसे ही यहां मैं वही कह रहा हूं कि आपका आंसर डायरेक्ट विदाउट एनीथिंग सोचने के बिना आ जाएगा। देयर वाज अ गिवन कंडीशन एक्स वाई लेस देन 1। ये कंडीशन हमने लास्ट स्टेप में यूज करी है यहां पर। ये फार्मूला, ये चीज इसके इक्वल कब होती है? ये आपस में कैंसिलेशन तभी होता है, ये सॉरी, ये फार्मूला इसके इक्वल कब होता है? when xy is less than 1. So this condition was already given in the question, इसीलिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है यहां पर। Now very important type of questions. If tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is pi by 4, find the value of x. Note carefully. This is the given equation. So अब हम क्या सीख रहे हैं? Solving or getting the value of x in inverse trigonometric equation. Apply this formula directly. ये पूरा एक टर्म मान लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चेक दिस आउट। तो वो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यस यस, दैट भानु जो आप बताना चाहते हो, दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव अप्रोच। कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है उसमें, बट जनरली वी यूज दिस, दैट इज ओके। चेक आउट द नेक्स्ट स्टेप। फॉर्मूला लगा दिया और एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। यहां तक आ गए हम। अब जो ये tan इनवर्स है लेफ्ट साइड में, आप उसे RHS में ले जाइए। RHS का मतलब वो tan इनवर्स RHS की तरफ आकर tan पाई बाय 4 दे देगा, विच इज एक्चुअली 1। क्रॉस मल्टीप्लाई and get the value of x plus minus 1 by root 2. Now it is very important to note how come we be sure कि दोनों आंसर मेरे करेक्ट हैं। y से नेगेटिव वैल्यू या y से पॉजिटिव वैल्यू रिजेक्ट क्यों नहीं हुई है, उसे समझने के लिए प्लीज एवरीवन नोट हियर। जब हमने ये वाला फार्मूला लगाया था
this formula, there is a condition that xy product should be less than 1. ये हमें पता है ना, यहाँ पर ये कंडीशन थी कि xy प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1. तो अब अगर मैंने इधर फॉर्मूला लगाया है तो दिस इज x एंड दिस इज y. तो एज पर द डेफिनेशन द फॉर्मूला और दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन वी एज्यूम्ड, क्या हमारा रहा होगा एजम्पशन कि दिस प्रोडक्ट इज less than 1. That is x square minus 1 upon x square minus 4 is less than 1. No need for further calculation. आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि ये कंडीशन जो भी x की वैल्यू आए उसे सेटिस्फाई करना है. तो अब आप जरा x की वैल्यू यहां पुट करके देखो. पुट x इज इक्वल टू, चाहे 1/√2 रखूं या प्लस या माइनस 1/√2. आप चेक करिए दोनों केस में मेरा LHS कितना आ रहा है. प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस वुड बी हाफ माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 4. आप चेक कर लीजिए इस आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू इज लेस देन 1. और यही हम चाहते थे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन ओनली आई कैन क्लेम दैट द वैल्यू ऑफ x है वो प्लस माइनस 1/√2 है. बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस पार्ट और हाफ मार्क इस चीज की वजह से डिडक्ट हो जाता है कि अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया कि वैल्यू रिजेक्ट या एक्सेप्ट क्यों करी जा रही है. I hope the basic idea is clear to all of you. Can I see your responses in the chat box? Y और N. Attendance भी हो रही है आपकी रैंडम. ओके प्रसन्नजीत, ओके ठीक है. प्रणव, दिव्या, समृद्धि, पायल, कृतिका, भूमिका, प्रकृति, ओके, एंड मिताली, लवेश. Are these only students here in the class? अनन्या, ये बीच में अगर नाम कोई रह गया बोलना. ओके, सारे बोल दिए हैं. So what about the remaining class? What about the remaining 16, 17 students? Okay, Vyom. Okay, ठीक है आतिश. Check out this question. Find the value of the following expression. Tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. Note carefully. This is tan outside. So what I am going to do now, I will convert this into tan inverse. I will convert this also in tan inverse. So how we can go about this? ये फॉर्मूला मैं अल्टीमेटली लगाना चाहता हूं. तो साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करने का मेथड प्लीज यहां ध्यान से देखिए. साइन इनवर्स 3/5 को x कह दिया. In other words, sin x will be 3/5. Consider a right angle triangle. सोचे ध्यान से, ये एंगल x है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 आ गया बेस जो है. और अब इस केस में tan कितना आ जाएगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये आ गया 3/4. इससे x कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4. तो x आ गया मेरा tan इनवर्स 3/4 और वो ऑलरेडी इक्वल था साइन इनवर्स 3/5 के.
So in other word, we have sine inverse 3 by 5 equal to tan inverse of 3 by 4. फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर लिया है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. कॉट इन नेक्स्ट वाला देखिए, वो तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट है. क्या होगा आंसर? सर 2/3. यस, कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल विल वर्क. ये फार्मूला हम देख चुके हैं. तो tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा. कॉट इनवर्स 3/2 विल बी tan इनवर्स 2/3. सब्स्टिट्यूट both of these in the given expression. तो एक्सप्रेशन में देखो मैंने ये सब्स्टिट्यूट ही करा है. अब आप यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं. याद रखिए दी कंडीशन इज नॉट मेंशन, बट आपको पता है वो ये होती है. दैट इज in this, while before I apply the formula, I need to ensure that this product is less than 1. Then only I can apply the formula. तो वो सेटिस्फाई कर रहा है. यहां पर फॉर्मूला लगा दिया. टेक द एलसीएम, सिंप्लीफाई योर रिक्वायर्ड आंसर. और tan से tan इनवर्स कैंसल क्यों? क्योंकि अंदर यहां रेंज R होता है, कुछ भी आ सकता है tan इनवर्स में. तो 17/6 योर रिक्वायर्ड आंसर. यस, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हायरार्की लेवल में सबसे पहले आपने इसे सोचा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया, वो माइनस माइनस प्लस कर देगा. साइन इनवर्स हाफ होता है π/6. एलसीएम एंड योर आंसर. बीच बीच में मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं, 1 मार्कर डायरेक्ट. Now from inverse trigo itself I am going to consider more problems. Many another various type of situations will be considered. Let us begin with the following. Evaluate the following. Yes, check it out. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इन होमवर्क. पहले बता देता हूं. फर्स्ट पार्ट अभी हम अभी जस्ट किया है. I observe that outside it is sin. तो आप अंदर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो इसे. और वो कैसे करते हैं? एक तो लेंदी मेथड पूरा मैं पीछे दिखा चुका हूं कि आपने इसको x कह दिया तो cos x विल बी 3/5. राइट ट्राइंगल cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. दिस विल बी 4. और इसे देखकर व्हाट इज साइन x? 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. और इससे x कितना आ गया? साइन इनवर्स. ये भी x है और ये भी x है. इन अदर वर्ड दोनों सेम हो गए. सो देयरफॉर मैंने जस्टिफाई कर दिया cos इनवर्स 3/5 इज साइन 4/5. तो cos इनवर्स 3/5 की जगह ये लिख दिया. लॉजिकल कैंसिलेशन, योर रिक्वायर्ड आंसर. Yes, check this out. Evaluate the following. Sine of 2 cos inverse of -3/5. ये निकालना है.
सबसे पहले कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मीन्स आप इस कॉस इनवर्स माइनस को क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, ओपन द ब्रैकेट, 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5। 2 पाई में से कुछ माइनस करा है, विच क्वाड्रेंट वी आर, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। अब ये 2 की वजह से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक फार्मूला याद दिलवा देता हूं। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ऑलरेडी मैंने आज की क्लास में आपको ये फार्मूला डिस्प्ले किया था। तो ये 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, so that this will be cos इनवर्स कितना आ गया, ये अलग से मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो दिस वैल्यू इज 2 इंटू 9/25 माइनस 1, 18/25 माइनस 1, और विच इज 18 माइनस 25 माइनस 7/25। cos इनवर्स ऑफ -7/25 आ गया। Any doubt till this step? And this is not only the unique way. आप पहले ही स्टेप में अगर cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करना चाहते वो भी कर सकते थे। फिर ये cos इनवर्स ऑफ माइनस आ गया, वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स। एंड विच क्वाड्रेंट, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव ही आता है, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ये लिखा गया। और हाउ विल यू सॉल्व दिस फर्दर, सोचिए जरा ध्यान से। बाहर साइन इनवर्स है, आप कॉस इनवर्स की टर्म में लिख दो, तो वो साइन इनवर्स की टर्म में लिख दो। तो आप सोचिए राइट ट्राइंगल कॉस की टर्म में। अब मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं, 7/25 कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। 24/25 आंसर माइनस में आ रहा होगा, ये आ गया 24। तो सोच के देखिए कॉस इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 24/25, एक माइनस बाहर ऑलरेडी था, ये लॉजिकल कैंसिलेशन, -24/25 योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक नेगेटिव की आपकी कोई गलती आ रही थी, सो वो मैंने बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, so make a note of it and share if you come across some easier method। तो इससे इजी बिल्कुल हो सकता है, वो हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही मैं कुछ और स्टेप सोच लेता, शायद इससे इजी बन जाता, बट दिस इज द परफेक्ट मेथड।
आंसर यही है -24/25। We already have discussed such question. Check this out. There are number of ways actually. मैं यहाँ sin inverse x plus sin inverse x का फार्मूला लगा सकता हूँ, बट एज मेंशनड इफ पॉसिबल हम उसे अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करने का मतलब आई विल कन्वर्ट दिस इनटू, अरे बट अल्टीमेटली आई हैव टू यूज दैट। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर भी देता हूँ यहाँ पर, बाद में फिर से मुझे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना ही रहेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अप्लाई दी फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या था फॉर्मूला, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां पर, साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, y हो गया था 5/13 और प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मेक इट श्योर दी आइडिया इज क्लियर कि कैसे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये देखिए कितना आ गया, 3/5 इंटू रूट में आएगा, मैं एलसीएम भी ले रहा हूं साथ में, ये लिखा जाएगा। वैसे मेंटल मैथ्स में करते तो हम एक स्टेप बिल्कुल कम कर सकते थे, बट चलिए मैंने प्रॉपर वे में लिख कर दिखा दिया है। सो दैट इट वुड बी 3/5 इंटू, ऊपर आ गया 144, उसका रूट होता है 12 और रूट 169, 13 आ गया। क्लियरली दिस इज 4/5। कुछ कैंसल नहीं करते, ध्यान से देखें तो एलसीएम सेम आ गया है दोनों केस में, राइट। 65 इज द एलसीएम, तो ऊपर कितना आ गया, 36 प्लस 20, so that this will be cos of sin inverse 56/65। अब क्या करेंगे, बाहर cos है ना, तो आप इस वाले साइन इनवर्स को राइट अप्रोच लगाना ही रहेगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। व्हाट विल बी दिस बेस x अंडर द रूट 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट आ गया हमारा 56 का स्क्वायर, तो वो आप निकाल कर देख लीजिए। थ्री 136 एंड इस वैल्यू में से मतलब हम 4225 में से माइनस किया, ये आ गया आपका 1089 और 1089 चेक करो 33 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो चेक करना। यस 33 ओनली, तो x आ गया 33। तो इसका मतलब ये अगर मैं cos की टर्म में लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ, cos होता है बेस अपॉन
hypotenuse, so that 33/65 is your required answer. तो आपका ये 3 मार्कर क्वेश्चन हो चुका है. Check out if any doubt. Check out this question. Prove that tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/5 minus tan inverse 8/19 is pi/4. So let us start with the LHS. Simple but calculation है इस क्वेश्चन में. Repeated application of formulas लिख सकते हैं. What I am going to do? Let me consider first and second together. और इसमें फार्मूला लगा दीजिए. कौन सा दिख रहा है इसमें फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1. तो अगर आप यहां पर चेक करो तो दिस इज 9/20 which is clearly less than 1. तो फार्मूला हम लगा सकते हैं ये. तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई. ये एज इट इज tan इनवर्स 8/19. टेक दी LCM एंड सिंप्लीफाई. ऊपर ये आ गया 20 और ये आ गया 15 प्लस 12. नीचे कितना आ गया LCM 20 लेने के बाद? 20 माइनस 9, और माइनस में ये टर्म चल रही है. So that it will become tan inverse 27/11 minus tan inverse 8/19. और अब कौन सा फार्मूला हमें दिख रहा है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला, which is equal to this. करते हैं इसे अप्लाई. tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y. Take the LCM and simplify. What will happen? Ultimately you will find कि ये tan इनवर्स 1 दे रहा है. वो आप होमवर्क में चेक करना ये चीज. और tan इनवर्स 1 का मतलब pi/4, hence प्रूव. यही तो RHS था हमारा. So very important type of question of proving wherein the just formulas are to be applied. I hope the idea is clear. Chale, that's all for today's class. This is the question for your homework.
Not much, only one question for your homework. Screenshot ले लीजिए. And the basic hint to start is cot inverse is tan inverse 1 by x. So change the whole question in terms of tan inverse. Then you will be able to prove it easily. Chale, ending the class now.